اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو ٹاپک ہے گرامیٹیکل یونٹس۔ اس کا آج میں پارٹ 1 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پارٹ 1 بہت ہی امپارٹنٹ ہے، آگے چل کر آپ کے لیے مزید آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ سب اب سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ آج کے ہم لیکچر کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں۔ ویسے یہ لیکچر اگر بڑا ہو جاتا تو میں اس کو چھوٹا کرتے ہوئے آج اس کا پارٹ 1 صرف پیش کرتا ہوں۔ پارٹ 1 کے اندر جو چیزیں آج ہو سکتی ہیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر اگلے پارٹ میں اس کی مزید جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گرامر کے بارے میں، اس کے بعد ہے فنیمس، اس کے بعد مورفیمس، اس کے بعد ورڈز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد فریزز کے بارے میں پڑھیں گے، کلازز کے بارے میں پڑھیں گے، اور سینٹنسز کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ پیراگرافس، ایسیز، ڈسکورس، اسٹوریز اور ناولس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان تمام جتنے بھی گرامیٹیکل یونٹس ہیں ان کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ آپ ان کا اچھے طریقے سے آپ ان کا انٹروڈکشن اپنے ذہن میں رکھ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ورڈز گرامر، بہت ہی جانا پہچانا لفظ آپ کے سامنے، ہر لینگویج کے لیے ضروری، لازمی نہیں ہے کہ صرف انگلش کی بات کی جائے تو گرامر ہوتا ہے، لیکن گرامر یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی زبانیں ہیں، کم و بیش 7,000 سے زائد زبانیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، ہر لینگویج کو اپنا گرامر ہے۔ کوئی اپنی ان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن گرامر ان کی اسٹرکچر بناتا ہے۔ اس اسٹرکچر کے ذریعے ہم لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ گرامر is a set of rules that help us use words correctly۔ یہ رولز جو ہیں، اصول جو ہیں، یعنی اصول کا ایک سیٹ ہے، ایک مجموعہ ہے جو ہمیں الفاظوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، so that we can express our thoughts and ideas correctly or clearly، تاکہ ہم اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز دوسروں تک آرام سے ایکسپریس کر سکے، ان کو ظاہر کر سکے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ پوائنٹ ہے، دس انکلوڈس تھنگس لائک فارمنگ سینٹنسز یوزنگ پنکچویشن اینڈ چوزنگ دا رائٹ ورڈس فار دا ڈفرنٹ سچویشنس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک اور بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں، ہم اس میں سینٹنسز بناتے ہیں، ہاں، اور یوزنگ پنکچویشن، سینٹنسز کو پنکچویشن کے ساتھ، یعنی پنکچویشن میں مطلب کہ کوئی بغیر کسی مسٹیک کے، بغیر کسی غلطی کے ہم سینٹنسز بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور ہم آگے ان کو یوز کرتے ہیں، اینڈ چوزنگ دا رائٹ ورڈس فار ڈفرنٹ سچویشنس۔ اور ایک اہم پوائنٹ جو گرامر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم الفاظوں کا چناؤ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چناؤ کرتے ہیں کہ ان الفاظوں کو استعمال کہاں پر کرنا ہے، کون سی ایسی رائٹ پلیسز ہیں، کون سی رائٹ سچویشن ہیں جہاں پر ان الفاظوں کو استعمال کیا جائے اور کس اسٹرکچر میں کس طرح رکھا جائے۔ اس کے بعد knowing and following the rules of grammar can help us to speak and write in a way that others can easily understand۔ گرامر کے
उसूलों को जानने और उन पर अमल करने से हमें बोलने और लिखने में इस तरह मदद मिल सकती है कि दूसरे आसानी से समझ सके। उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू डिफाइन ग्रामेटिकल यूनिट्स। ग्रामेटिकल जो यूनिट्स हैं उनको किस तरह डिफाइन किया जाएगा। वैसे ग्रामेटिकल यूनिट्स होते क्या हैं, ये मतलब हम इनको अपने अल्फाज में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई चलते हैं। ग्रामेटिकल यूनिट्स आल्सो नोन एज अ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बुनियादी अज्जा हैं। दैट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। हम ग्रामेटिकल यूनिट्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम जुमले बना सकते हैं। इनकी मदद से हम जुमले बना सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दीज यूनिट्स हाउ दे आर यूज्ड, और इन इकाइयों को समझना, इन अज्जा को समझना, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है किसी जबान में मौसूर तरीके से बातचीत करने के लिए जरूरी है। और उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं कि एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है, यानी माइकल हॉलिडे, अ ब्रिटिश लिंग्विस्ट, डिफाइंड ग्रामेटिकल यूनिट्स as functional elements of language that are used to create meaning in communication। ये बरतानवी लिंग्विस्ट है, एक्सपर्ट है, जिसका नाम है माइकल हॉलिडे। वो बताते हैं कि ग्रामेटिकली यूनिट्स को हम किसी जबान के फंक्शनल एलिमेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कम्युनिकेशन में जब हम उनको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं या हम बातचीत करते हैं, तो उसमें उनका किरदार जो मेन होता है वो कौन सा किरदार होता है कि ये जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं वो एक सेंस बनाते हैं, एक कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं, ताकि अगला बंदा जो है वो बात को अच्छे तरीके से समझ सके। थ्योरी नॉन एज अ सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, जो यानी इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उस थ्योरी को सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। Purposes that every linguistic unit serves as a specific function in communication। इनके इस थ्योरी के मुताबिक यानी ये कहते हैं कि हर जो लिंग्विस्टिक यूनिट है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, किसमें, कम्युनिकेशन में, यानी कम्युनिकेशन में उनका कुछ अहम किरदार होता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे कि ग्रामेटिकल यूनिट्स जो हैं वो दरअसल कौन से हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं कराता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा फनीम्स, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में इनके बारे में मजीद डिटेल पढ़ूंगा। लेकिन आज आप इंट्रोडक्शन अपने जहन में रख लें, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 पेश करूंगा, फिर उसमें कुछ जो इसके ग्रामेटिकल यूनिट्स होंगे उनको मैं मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है मॉर्फीम्स हैं, यानी फनीम्स से फनीम्स मिलकर मॉर्फीम्स बनाते हैं। और उसके बाद मॉर्फीम्स को मॉर्फीम्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स की मदद से हम फ्रेजेस बनाते हैं। और आगे चलकर हम फ्रेजेस की मदद से क्लॉजेस बनाते हैं। और क्लॉजेस की मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो चल पड़ता है और हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो अभी मैंने नाम एक्सप्लेन किया था, माइकल हॉलिडे, ये जो माहिर लिंग्विस्टिक था, यानी लिंग्विस्टिक का जो एक्सपर्ट था, आप उसको लिंग्विस्टिक्स का साइंटिस्ट भी कहते हैं, इन्होंने यहाँ तक तरतीब दी है। लेकिन आगे हम सेंटेंसेस को यूज करते हुए कौन कौन सी चीजें जो हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स में हम बनाते हैं सेंटेंसेस की मदद से। हम आगे अगर देखें तो हम सेंटेंसेस की मदद से हम पैराग्राफ बनाते हैं। सेंटेंसेस की मदद से हम पैराग्राफ्स बनाते, पैराग्राफ्स की मजीद स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट फॉर्थ कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करके बता दूंगा। उसके बाद पैराग्राफ्स की मदद से हम ऐसे बनाते हैं। और ये याद रहे कि एसेस के अंदर, वैसे एसेस के कितने पार्ट्स हैं और उस
यानी एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बॉडी स्टेज कहते हैं। यानी उस बॉडी स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ्स, यानी उस एसेस के अंदर बॉडी स्टेज पैराग्राफ्स में डिवाइड हो जाती है। फिर वो ऐसे की लेंथ पर मबनी होता है कि ऐसे की लेंथ कितनी है। गोया आप 500 वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं, 1000 वर्ड्स का लिखते हैं, 1500 का वर्ड्स लिखते हैं। अगर आप सीएसएस या पीएमएस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, आप उसके एस्पायरेंट हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसे 2500 से 3000 वर्ड्स तक लिखने का मौका मिलता है वहां पर इन एग्जाम्स में। तो ऐसे कमोबेश 3000 वर्ड्स तक भी आता है। ऐसे ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें तो आपको इतना स्किल आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, इतने अल्फाजों का, अपने आइडियाज का चुनाव करना चाहिए, ताकि 2500 से 3000 वर्ड्स को ऐसी तरतीब के साथ लिखें जो आप अपने सीएसएस या पीएमएस के एग्जाम में कामयाब हो सकें। उसके बाद हम एसेस की मदद से फिर आगे ये इतनी बड़ी जो लंबी दास्तान हमारे बन जाती है, जो आगे डिस्कोर्स की शक्ल लेती है, डिस्कोर्स की शक्ल अख्तियार करती है। मजीद मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कोर्स को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक एक वर्ड को डिटेल में अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता तो शायद हमारा लेक्चर ये बहुत ही लंबा हो जाता। और फिर डिस्कोर्स के अंदर जितनी सारी चीजें आ जाती हैं तो वो स्टोरीज की शक्ल अख्तियार भी कर लेती हैं, हम स्टोरीज बना लेते हैं। और आखिर में इनकी जो स्टेज है वो नॉवेल्स है, जो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। खासतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में हम नॉवेल्स को यानी एक बड़े पैमाने पे ग्रामेटिकल यूनिट्स में शामिल करते हैं। तो ये ग्रामेटिकल यूनिट्स जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, इंशाल्लाह मजीद टू बी कंटिन्यूड, ये लेक्चर आगे जारी और सारी रहेगा। अगले लेक्चर में इसका बकिया हिस्सा पेश करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग।